Perfect. So I'm assuming पढ़ाई अच्छा चल रहा है, considering none of y'all are answering. So what we'll do is, we'll start today. Yes, very nice. So what we'll do is we will start with how you should prepare for your exams. We'll first go through कि आपका जो वन एंड हाफ डे स्टडी स्ट्रैटेजी होगा वो कैसे होगा, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में क्या करना है, ऑल ऑफ दैट वील डू. बट बिफोर आई डू दैट, there is some confusion regarding the way you have to answer your questions in the examination. So, two things are there. One you have is your theory question, जो अपन ने यहाँ पे देखे थे कि theory questions है जहाँ पे सिर्फ descriptive है. So you just have to write your descriptive question answer form में जो लिखने का है. Wherever there is your pointers given, अगर pointers अपने पास already है, then in that pointer form only we will have to write. But there are a lot of questions जहाँ पे ऐसे pointers नहीं होते हैं. Then in that case you have to understand what is the question that is being asked. Some of you all have written your what do you call the draft answers, and I've seen that, and I've also given you some on Telegram, and I've told you what are the pointers that you should write. So if that is helping you, we can go ahead and do more of such question answers that will help you understand how to write the answers. But in descriptive questions, what you have to do is basically you have to understand कि क्या क्वेश्चन पूछा है. अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस पूछा है तो what are the important points. These important points are the pointers which we always used to discuss in class. So when we used to revise, तो अपन अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस रिवाइज कर रहे हैं तो अपन उसमें कौन से पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं. Those are the points that have to form part of your answer. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में 1 साल का वैलिडिटी है, वैलिडिटी कब से स्टार्ट होता है, सब्सिक्वेंट ऑफर कब तक होना चाहिए. सो ऑल ऑफ दैट is something that will form part of your shelf prospectus answer. So those points have to be there. Anything additional that you have to write, or you want to write in your own words, or you want to explain what you are, writing, that is something that is additional. So that is for your theory questions. When it comes to case study questions के लिए अपन ने ऑलरेडी एक बार ये डिस्कस किया था क्लास में कि कैसे लिखेंगे. तो पहले हम लिखेंगे कि लॉ क्या है, करेक्ट. देन वी राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड देन वी राइट द आंसर. So what will happen here is that in such case study questions, you will never start your answer with yes. This is this. No. So you will never start your answer with a yes or a no. So what happens here is that when you start in this particular fashion, तो तुम पहले लॉ लिखते हो, तो तुम समझाते हो कि लॉ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कौन से टॉपिक या कौन से लॉ के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो. देन यू राइट द फैक्ट्स इन योर ओन वर्ड्स. फैक्ट्स कहाँ से आएगा, फैक्ट्स इज नथिंग बट द क्वेश्चन विच इज देयर, उसी को तुम लिखोगे इन योर ओन वर्ड्स. जस्ट डोंट कॉपी द फैक्ट्स इन द क्वेश्चन, जस्ट अपने वर्ड्स में लिख दो कि तुमको क्या फैक्ट समझ में आया है. And then what you are planning to write here, yes, no करके क्यों, considering this is the law, the answer will be this. So then you have to write your answer. What helps here is when you do this is, यहाँ पे ना तुम्हारा आंसर अगर ये सपोज नो होता है और तुमने यस लिखा है, एज ए एग्जामिनर आई जस्ट पुट रॉन्ग, and probably I'll just go through this, I'll give you a half mark and I'll move ahead. Here what happens is that if your law and facts are correct, 99% of the time the answer has to be correct considering you've understood the law. But assuming कि आंसर गलत लिखा बट लॉ और फैक्ट्स बराबर से समझा है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो मार्क्स है वो तुमको ज्यादा मिलेगा. समझ में आया. सो प्रैक्टिकल केस स्टडी जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे केस बेस्ड है, वहां पे यू हैव टू राइट इट इन दिस फैशन ओनली. अगर डिस्टिंग्विश पूछा विच इज वेरी अनलाइक, मतलब कम चांसेस है इन इंटर लेवल, तो अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है, देन इन दैट केस वो जो अपना टैबुलर फॉर्म में लिखते थे, जैसे फाउंडेशन में लिखते थे फ्रॉड क्वेश्चन के बीच में, तो वो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है. बिकॉज इंटर you will not have questions unless they ask you a question distinguish between LLP and company. See, something like that you can write it in this fashion. But other things, when they ask you, you should generally write it in paragraph forms. So you explain one concept in one paragraph, second concept in second paragraph. तो वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो. ऐसा टेबल बनाने का बिकॉज डिस्टिंक्शन है, वी आर नॉट इन स्कूल.
So that is something that is not required at all. ठीक है, so that is for your distinguish between. Descriptive, कितना length होना चाहिए depends on your marks also, and also depends on what kind of question is being asked. So normally if I show you अपने जो marks आते हैं 5 marks के questions है, correct? So for a 5 mark question, your one full page is something that is more than sufficient. But if the question is such, or if your handwriting is very big, और ऐसा कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो अगर ऐसा लिखने का आदत है और 1 के बदले 1.5 जाता है, doesn't matter at all. If your handwriting is very small and you feel कि अच्छा ये 1 page भरना is also big task and you write like a 3/4 page also, that is also perfectly okay. What you write in your answer is going to fetch you marks. This is not a BCom exam जहाँ पे तुम कितना लंबा आंसर लिखते हो उससे फर्क पड़ता है. But having said that, I've seen a lot of students who generally think कि अच्छा सी है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. तो कंजूसी नहीं करना है लिखने में. 5 मार्क का है तो 5 मार्क का आंसर लगना चाहिए. राइट ऑल योर पॉइंट्स, एक्सप्लेन ऑल योर पॉइंट्स. एग्जाम्पल अगर देना है तो दे सकते हो. अगर सपोज कुछ नहीं आ रहा और लगता है कि आई पुट अ एग्जाम्पल देयर, देन पुट अ एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम. बट राइट द प्रॉपर आंसर. डोंट जस्ट एक्सप्लेन इन 1 और 2 ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कि ये है. ऐसा कंजूसी नहीं करना है. प्रॉपर एक्सप्लेन करो जो भी पूछा है वो. ठीक है. नाउ अदर देन दैट, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर मी फॉर राइटिंग द आंसर्स? Other things I'll discuss. Writing the answers के लिए any question? Okay. The Telegram पे जो मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन देती थी जिसके लिए you used to write the answer, or you were supposed to write the answer. I'm not sure if all of you all have written. Did you all try doing that, and then did you listen to the voice note where I said that these are the pointers to be included? Has anyone tried? Is that helping you guys? Do you want to do that more so that it helps you? थोड़ा interaction will really help you understand where we are. कंटिन्यू करना है वैसा कि नहीं करना है? Okay, any questions pertaining to how you want to how to write the answers, or should we move ahead to the next part? ऐसा इतना सन्नाटा है तुम लोग ऑनलाइन में ऐसा बिहेव करते हो? अच्छा, ठीक है. So what we will do is I'll move on to the next part. If you have questions, and again at the end we will see if we can answer the questions. Okay? How to write the answer? That is what I've told you. No? Can you just put like what do you mean by how to write the answer? क्या समझ में नहीं आ रहा है? Then I'll be able to help you better. सेक्शन नंबर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर सेक्शन नंबर तुमको आता है, लाइक देयर आर सर्टेन सेक्शन व्हेन यू रीडिंग द सेक्शन, तो तुमको वो दिमाग में रह जाता है कि ये सेक्शन में है. तो अगर तुमको वैसा रह गया है, तुम लोग को आता है वो सेक्शन, देन यू कैन राइट द सेक्शन नंबर इफ यू आर कॉन्फिडेंट. इफ यू डोंट नो द सेक्शन नंबर, दाप मारने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ऐसा करोगे तो मार्क्स कट होगा. नॉट राइटिंग द सेक्शन नंबर इज परफेक्टली ओके. It's a CA exam, it's a professional exam, and you're not expected to remember the section number. If you can remember, well and good, but don't put in special effort and time to remember the question number. Conclusion and starting line will depend on the question. So there is नो फिक्स्ड ऐसा रूल कि कैसे स्टार्ट करना है. बट अगर सपोज जैसे मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस का एग्जांपल दिया था, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड यू विल से इट इज लाइक एनी अदर प्रोस्पेक्टस, but because it has a validity of 1 year, it has a shelf life of 1 year, then it will be called as a shelf prospectus. And how will I end that particular question?
So I will talk about the information memorandum. What are the additional details to be given in the information memorandum, and accordingly I will end the question answer. ओके, सो जहाँ पे केस स्टडी है वहां पे तो तुमको पता है स्टार्ट एंड कैसे करना है, लॉ जो है उसके हिसाब से करना है, एंड एंड जो है वो तुम्हारा आंसर होगा, जो बेसिकली योर व्हाट वी डिस्कस फैक्ट्स एंड द आंसर दैट इज करेक्ट। यस, ना अभी 1.5 डेज का जो तुम लोग का स्टडी लीव होगा, इसमें हाउ यू शुड प्रिपेयर एंड हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर, write the answers, क्या बोल रही हूँ, how you are supposed to prepare and go about the 1.5 days. Now, this is the study strategy which is as per my understanding and how I would have done if I were in your place. But feel free to change based on how you are comfortable with. This is a broad guideline. तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तुमको ऐसे लगता है मेरे पास कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं है, तो ये स्टडी स्ट्रैटेजी फॉलो करने का एंड उसके हिसाब से करने का। अगर तुमको ऐसे लगता है कि नहीं, ऑन फर्स्ट डे आई वांट टू स्टार्ट विद दिस, देन प्लीज गो अहेड। सो दिस इज नॉट लाइक अ फिक्स थिंग, तुमको जैसे जमता है वैसे करो। नाउ व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट इज वंस आई कम फ्रॉम माय पेपर, अगर मेरा प्रीवियस पेपर अच्छा गया है खराब गया है, फर्स्ट थिंग इज यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस योर पेपर विद एनीवन एल्स। everyone has their own way of writing the paper, everyone has their own confidence। कुछ लोग होते हैं जो लोग का एकदम खराब भी होता है लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर आया होता है कि बहुत अच्छा गया है, ऐसे लोग से बात करते हैं तो डर जाते हैं कि अच्छा मेरा अच्छा नहीं गया। सो देयर आर सम पीपल, आई हैव फ्रेंड्स हु आर ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स थ्रू आउट, बट जब पेपर देके निकलते हैं तो वो लोग इतना रोते हैं कि मुझे नहीं रोना आता है तो भी रोना आ जाता है। सो वैसे लोगों से भी दूर रहना। तो अपने को क्या है कि वी डोंट हैव टू डिस्कस द पेपर विद एनीवन। जैसे एग्जाम हॉल से निकलते हो, डायरेक्टली गो होम, डोंट टॉक टू पीपल, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, गो होम। आफ्टर गोइंग होम, डोंट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सिट एंड चेक एंड हर एक के बाजू में मार्क्स लिखने का कि इसको इतना मार्क्स मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज द पेपर दैट यू गिवन, वो लिख के तुमने दे दिया। नाउ वट एवर यू डिस्कस, वट एवर यू डिसाइड इंटरनली, यू थिंक कि हाँ इतना मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट ऑफ एनी रेलिवेंस एट ऑल, बिकॉज तुम क्या सोचते हो इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। वो जो पेपर चेकर तुम्हारा पेपर चेक करेगा उसके हिसाब से जो है वो मार्क्स मिलने वाले हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। 1.5 डे है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा इवनिंग उसी में रोने धोने में लग जाए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। पेपर अगर खराब भी गया है, there is a high chance that you will get good marks, correct? I'm not sure if I told you, but CA फाइनल में मेरा ऐसे हुआ था। I told you accounts paper was the first paper, 20 मार्क का छूट गया था, and I was very stressed, and you know, if I would sit and calculate कि कितना मिलेगा, मैं पक्का फेल होने वाली थी मेरे हिसाब से, बट फेल हुआ नहीं हुआ फेल। सो वो पेपर चेकर के ऊपर है, तो जो पेपर आके गया है भूल जाने का। खराब गया है, रोना आ रहा है तो आधा घंटा रो ले, खत्म हो गया। बट डोंट डिस्कस, डोंट सिट एंड ओपन योर बुक एंड काउंट कि कितना मार्क्स मिलेगा, वो सब का कोई रेलेवेंस ही नहीं। आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, once you come home, have your food, go to sleep, take a half an hour nap, power nap ले लो, get up and then start studying. Now, when you start studying for law, what you will do is that you will start with other laws. So, to get into the group, कि पेपर जैसा भी गया है फर्स्ट पेपर अपना, एक बार अच्छा भी गया तो यू आर वेरी हैप्पी कि अच्छा गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, करेक्ट? नहीं अच्छा गया तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद एलएलपी। एलएलपी जो है वो तुम लोग ने लास्ट ईयर भी किया है, अज्यूमिंग ऑप्शन में नहीं छोड़ा है, तो ये लास्ट ईयर भी तुमने की है। देयर सम कंफर्ट विद एलएलपी, सो यू स्टार्ट विद एलएलपी सो दैट एक वो मोशन में चला जाएगा कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई। डू योर जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन। फेमा जो है we will not do on the first day because FEMA थोड़ा technical भी है, you are already tired after giving your paper, so on the first day you will not do FEMA. So start with LLP, general clauses and interpretation, these three things you do and so जाएगा। Next day when you get up, first thing you do is you start with FEMA. Okay, so once you start, you're fresh now because सो के मस्त उठे अपन,
तो उठ के अपन FEMA से पहले स्टार्ट करने का, सो दैट वो जो टेक्निकल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा. दिस वी डोंट वांट टू कीप FEMA फॉर द लास्ट डे. सी अगेन योर यू हैव टू सी व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल. अगर तुमको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे स्ट्रेस होगा तो डे 1 पे मुझे FEMA करना है, तो डू दैट. But you're tired, so it's best to go ahead with LLB general process interpretation, and then you start with FEMA on the next day with a fresh mind. Then on the next day, you will do your full complete exam. Correct? यहाँ पे I have listed down according to me the order in which you should do the chapters based on the importance कैसे कितने questions पूछते हैं. बट अगर तुमको ऑर्डर चेंज करना है, तुमको लगता है पहले इजी करना है फिर डिफिकल्ट करना है, दैट इज ऑल्सो ओके. In my view, whenever you are starting whatever subject, whether it is your account, tax, whatever you're doing, whenever you are starting, you should always eat the frog first. म्हणजे कि जो सबसे डिफिकल्ट है वो पहले करने का, तो माइंड रिलैक्स हो गया. इजी वाला तो अपने पाता है, तो जो डिफिकल्ट है डू दैट फर्स्ट. इसमें से अगर तुमको कुछ और डिफिकल्ट लग रहा है, से फॉर एग्जाम्पल तुमको ऐसे लग रहा है कि अच्छा प्रोस्पेक्टस ऑडिट एंड डिपॉजिट है बहुत डिफिकल्ट है, शेयर कैपिटल मैनेजमेंट मुझे आता है, तो डू दैट फर्स्ट. बट दिस इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मी इन विच यू शुड डू. फील फ्री टू चेंज इट. आई वुड नॉट एडवाइज यू टू डू द इजियर वन फर्स्ट, बिकॉज एंड में बहुत स्ट्रेस हो जाता है. फिर इसके लिए डिफिकल्ट चीजें हमेशा पहले करो. Even when you're studying right now, ensure that difficult things are done first. फिर इजी चीजें करो. इजी तो आता है तुमको, इसके लिए डिफिकल्ट जो है वहां पे तुमको मेहनत करना है. सो डू द डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट एंड देन गो टू द इजियर थिंग्स. So this is what you will do on your day 2. If you have not written, I will send the file on the group so you can have a look. So these are the topics which you should be doing on your day 2. Here I have not included incorporation and registration of charges. Registration of charges is a relatively simpler chapter unless you find it difficult. It's a very simple chapter, not much to be uh, seen and remembered. छोटा chapter भी है. And incorporation, though very important, is something which you have already done last year. तो उसी का revision है with a few additions which are there, which is like there for this year. But most of the things in the incorporation chapter is something that you have done last year. Okay, that is why I've kept it on day 3. If you are not comfortable, then instead of incorporation, you can also have dividend year. So यहाँ पे instead of dividend, you can do your incorporation. ऐसा change कर सकते हो. या अगर तुमको प्रोस्पेक्टस ठीक लगता है तो प्रोस्पेक्टस वहां पे ले लो एंड incorporation पहले कर दो अगर तुमको incorporation वाला चैप्टर, because incorporation chapter is important even though it is something which was there last year. उसमें से काफी questions आते हैं, so it is important. But because assuming you have done it, you know most of the stuff, memorandum क्या है, इंडोर मैनेजमेंट क्या है, तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं. जो लोग डायरेक्ट एंट्री वाले हैं वो लोग incorporation के बदले डिविडेंड कर सकते हैं. डिविडेंड अगेन इज अ रिलेटिवली स्मॉलर चैप्टर. और यू कैन डू प्रोस्पेक्टस इफ यू फाइंड प्रोस्पेक्टस इजी. ठीक है, बाकी के टॉपिक्स जो है वो तुमको डे टू पे करना है. दैट आई एम नॉट गिविंग एन ऑप्शन. ठीक है, एंड देन यू कैन रिवाइज जो भी तुम्हारे ऑडियो नोट्स है या रिविजन वीडियो देखने हैं, या आई सेंड द टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन, वो तुमको गो थ्रू करने हैं. या जो अपनी क्वेश्चन आंसर बुक है, एमटीपी आरटीपी है, जो तुमको देखना वो तुम उस टाइम पे देखोगे, वन से टाइम रिवाइज. एट दिस पॉइंट, इवन नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे 3. डे 3 पे तो हो ही सकता है, but before you go for your exam or even today when you are revising, there's a possibility that you may feel कि मुझे कुछ याद नहीं रहा, which is absolutely normal. When I was a student, law audit में मेरे को ऐसा ही लगता था, theory subjects में ऐसा लगता है. It is absolutely normal. So on day 3, if you feel, or on day 2 or day 1, whenever you're studying, if you feel कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है law में, don't panic. It is how it is supposed to be. तो वो वैसा ही लगता है. बट व्हेन यू गो एंड सिट इन द एग्जामिनेशन, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, यू विल रिमेम्बर स्टफ. ब्रेन पे थोड़ा भरोसा देने का, थोड़ा अंदर कुछ
गड़बड़ हुआ है, लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं याद रह रहा है. आई एम कॉन्फिडेंट इफ यू हैव स्टडीड यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एंड राइट इन द पेपर. सो एट दैट पॉइंट I'm telling you अभी से, not to scare you, but so that there is no breakdown at that point कि अच्छा याद नहीं रह रहा है, पेपर लिख क्यों नहीं लिखो, ऐसे भी होता है. कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी तूफान आ जाए, पेपर तो हमको लिखना जाना है. तो हमने सोचा एक ग्रुप देंगे तो एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देंगे तो दो ग्रुप देना है. दैट इज समथिंग दैट यू विल डिसाइड टुडे कि क्या देना है हमको. वो एंड के लिए नहीं रखेंगे कि दू की नहीं, सेकंड ग्रुप लगेगा तो दे दूंगा, टाइम पास के लिए दे दूंगा. नथिंग लाइक दैट. If you want to do it, you decide now, you prepare for it accordingly. Once you have decided, if all your friends are not giving group two, doesn't matter. मैंने सोचा है देना है तो मैं दे दूंगी. समझ में आ रहा है? So don't get influenced by, because you know friends are there, then I support. But friends अलग अलग होते हैं. Scholar friends का भी issue, पढ़ते नहीं वो लोग का भी issue होता है. So best not to listen to your friends. जो भी है अपना लास्ट डे पे अपने को कैसा लगता है उसके हिसाब से अपने को करना है. वी डोंट, इफ वी हैव डिसाइडेड वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट, नो मैटर वेदर दे आर डूइंग नॉट डूइंग, इररेलेवेंट. हाँ तू बहुत स्कॉलर है, दोनों ग्रुप दे रही, हाँ है, दे. ओके. सो वंस यू हैव डिसाइडेड, यू हैव डिसाइडेड एंड यू हैव टू डू इट. ठीक है. तो इतना समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे? एनी डाउट्स? देन नो. थैंक यू. तो अपने को कोई डाउट नहीं है. सो दिस इज हाउ यू विल prepare before your exam day. You're very lucky that you guys have that 1.5 day to revise, to study. So you should do that. Now, coming to your 15 minutes reading time. तो तुम्हारा पढ़ाई हो गया, तुम सेंटर पे पहुंच गए, लास्ट डे पे जितना रिवाइज करने का है. आई एम नॉट द पर्सन हु विल टेल यू कि अच्छा हो गया, 12 बजे बुक बंद कर दो, अभी कुछ नहीं देखने का है. लास्ट मिनट तक रिवाइज करने का. ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बाहर खड़े होके जो देखा है वो अंदर एग्जाम में पूछ लिया. सो रिवाइज टिल द पॉइंट यू आर कंफर्टेबल. इफ यू फील 12 बजे छोड़ दूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो 12 o'clock स्टॉप स्टडिंग. बट अदरवाइज इफ यूर लाइक मी, लास्ट टाइम तक पढ़ते थे, पेट घुमाने का अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो वैसा कर सकते हो. सो दैट इज ऑन यू. नाउ वंस यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, तुम्हारा पहले आएगा 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंपल्सरी क्वेश्चन एज वी ऑल नो, and is, because it is compulsory, it is deemed to be a little more difficult as compared to your other questions. Because उसको पता है तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे को आंसर लिखना ही है, तो वो हमेशा डिफिकल्ट होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में नहीं पढ़ना है. आई एम रिपीटिंग, 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं पढ़ना है, बिकॉज वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा एंड इट विल ब्रेक योर कॉन्फिडेंस. तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन को इग्नोर करना है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक अ फूल इन इंटर फॉर कॉस्टिंग, आई सीन द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा तो रीडिंग टाइम नहीं था, ऐसा ही पेपर आया, आंसर आया, सब आया, सब चालू करो. तो वी डिडंट हैव रीडिंग टाइम. तो फर्स्ट क्वेश्चन देख के 10 मिनट में शॉक में चली गई कि मैं क्या करूँ. सेम हैपेंड टू मी इन फाइनल. मैं मिस्टेक से सीखी नहीं, तो अकाउंट्स के पेपर में अगेन द सेम थिंग हैपेंड, एंड इन बोथ द टाइम्स व्हाट हैपेंड इज फॉर 10 मिनट्स आई डिडंट नो व्हाट टू डू. एंड व्हाट हैपेंड इज बिकॉज आई वेस्टेड माय 10 मिनट्स, मेरा पेपर छूट गया. So whether it is law, whether it is accounts, any paper you write, first question should never be read in your, you basically you read it in your 15 minutes reading time, but you don't start with your first question. So second question से हम start करेंगे, and second question से questions पढ़ने का, प्रॉपरली पढ़ने का. ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ के हाँ हाँ आता है ऐसा नहीं. Institute will not ask you of these questions if they want to make the paper difficult. So there will always be a twist. So read each and every word. Don't assume कि मेरे को सेम लगा क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में है वो, तो भी पूरा रीड करो, because there's a possibility that they will change something to make it difficult or to challenging. So here you start reading second question. So read the questions properly.
एंड डिसाइड कि जो 5 है उसमें से कौन से 4 इम्पोर्टेंट है। सो और इसको इन दिस 15 मिनट्स तुम डिसाइड करोगे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन का, अरे फर्स्ट पेपर का जो आंसर होगा वो मैं कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। If you feel question 6 is the easiest or you are very confident with question 6 answers, you start with question 6. जो भी बेसिकली तुमको लगता है कि तुमको बेस्ट आता है इन दैट ऑप्शन, उससे पेपर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन है ना एग्जामिनर का भी, तो अच्छा पढ़ना चाहिए। तो अपन डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन से हम आंसर लिखने का स्टार्ट करेंगे। वंस यू आर डन विद दैट, देन you will read your question number 1 because that you have to read, ऑप्शन तो है नहीं, वो तो लिखना ही है, वो भी पढ़ेंगे बट वो लास्ट में। पहले तुम्हारा सब सॉर्ट आउट हो गया, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 से मुझे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैं नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि इसमें मुझे 2 आंसर्स नहीं आते हैं। तो these are the questions I am going to write. I will start with question 6, then I will go to 2, then I will go to 3, then 4, 5, whatever, and then you read your question 1. ठीक है? So this is how you will use your 15 minutes का study reading time. आगे clear? Question 1 मत पढ़ना, personal experience से बोल रही हूँ, it is the worst thing that you can do is reading your question. Read your question 1, no problem, but read it at the end. First decide कि कहाँ से start करना है, कौन सा लिखना है, then read your question. Clear है? Now, few things which I have mentioned here is just go to them. One I have mentioned is that you can make notes of bullets, which I will tell you how I do. So, say for example, this is how I used to do when I was writing my papers, and it used to help me immensely. And I feel I should share this with you. So, what I will do is, say for example, answer sheet मिल गया. Now I know question 5 में ये पूछा है, तो मैं उसके जो भी बुलेट्स हैं वो लिख देती थी कि मुझे क्या क्या लिखनी है, एंड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। एंड ये जो मैं लिखती थी ये मैं पेंसिल से लिखती थी, तो यहाँ पे मैं पेंसिल से ये लिख दूंगी क्वेश्चन 6 का मुझे याद है, 7 का 7 तो है ही, सॉरी 4 का मुझे याद है, क्वेश्चन 3 का मुझे ये याद है। तो जहाँ पे भी ऐसे बुलेट वाले क्वेश्चन आंसर्स है वहां पे मैं ऐसा लिख के रखती थी। How this helps is that when I'm writing that particular, it doesn't have to be for all the questions, okay? It is only for जहाँ पे ऐसा बुलेट्स है या जहाँ पे मुझे लिख के रखना है कि ये मुझे आंसर लिखना है, मुझे पता है, तो उतना मैं लिख के रखूंगी। Then when I'm starting, say I started with question 2, then when I came to say question 5, in question 5, I will just see the bullet and quickly write. So what helps is how it helps is that you don't waste your time thinking तभी हाँ कौन सा पॉइंट था, because when you're writing and thinking it takes a little more time as compared to just copying, because यहाँ पे हो गया मेरा, and once I have done this question 5 के bullets मैंने लिख दिए, तो ये मैं erase कर देती हूँ. If you cannot write this, then you should not write this. You're not supposed to write anything on the paper with a pencil or a different color pen. And if you do that, then the paper will be marked as a suspicious paper. फेल भी करते हैं, तो ऐसा बहुत लोगों का होता है कि फेल आते हैं सस्पिशियस पेपर देके, तो फेल कर देते हैं। पेपर में भगवान का नाम लिखना या एनी फॉर्म ऑफ symbols or anything is something which is not at all permitted. So do not do that. You need not waste your time drawing margins. Already एक margin तुमको यहाँ पे दिया रहेगा जो पेपर में रहेगा। यहाँ पे लास्ट में अगर तुम्हारे मेंटली एक मार्जिन बना देगा कि अगर मैं पेपर जो है उसको रबर बैंड मारूंगी तो एंड से फट जाएगा, तो एकदम एंड एंड तक लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ने पैसा भरा है और आंसर शीट, तो अपने को आराम से मत यूज करने का, सप्लीमेंट लेने का। तो ये जो साइड का तुम्हारा है, इफ यू वांट टू ड्रॉ यू ड्रॉ, अगर तुम लिखने में स्लो हो पहले से, तो ये सब डेकोरेशन करने के लिए मत बैठना, थोड़ा एक जगह रखने का कि ये इधर तक ही मेरा आंसर आएगा, इसके आगे मैं नहीं लिखूंगी। सो अगर रबर बैंड में फट भी जाता है तो तुम्हारा आंसर इज सेफ बिकॉज इट इज स्टिल हियर ओनली। इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, इफ यू आर वेरी फास्ट, if you want to do the decoration, then you can draw the line here.
यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो व्हेन यू राइटिंग योर आंसर्स, पहले तो अगर स्टेपल करते हैं तो थोड़ा इधर बाहर ही लिखो, ये मार्जिन है, अगर तुम यहाँ पे स्टेपल करते हो तो ये छुप जाता है, दिखता नहीं। तो व्हाट टू डू, राइट योर क्वेश्चन टू ए, देन राइट टिल योर ओनली, बिकॉज अपना इधर तक ही है, एंड आंसर लिखने का। बट दिस हैज टू बी करेक्ट। I have seen a lot of students when they are even giving their test series, they put this wrong. And if this is wrong, whether मेरे को दुख होता है, लेकिन मेरे को तेरे को जीरो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 5 है और तूने क्वेश्चन 2 लिखा है तो ये गलत है। So please ensure that you put the question number correctly. At the end, if you have like a few seconds, then just go through it and ensure कि क्वेश्चन नंबर जो है बराबर डाला है, क्वेश्चन नंबर डाला है। घाई घाई में ये सब छोटी चीजें ही होती है जो तुम भूल जाते हो। सो इंश्योर कि क्वेश्चन नंबर बराबर से डाल। अदर देन दैट, गो थ्रू दैट। एमसीक्यू जो है इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड उसके मार्क्स अगर मिल गए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो व्हाट वी डू इज दैट एमसीक्यू, वेदर यू नो वेदर यू डोंट नो, अगर तुमको नहीं आंसर पता है फेक क्या है, मैं सामने से तुमको बोल रही हूँ, तुमको ऐसा इंकी पिंकी पॉन्की फादर डोंकी जो अच्छा लगता है यू डू दैट, बट इंश्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग द एमसीक्यू। अभी भी तुम लोग ने जो टेस्ट दिया था उसमें सीन पीपल लीविंग एमसीक्यू, दैट इज ब्लंडर। क्यों करना है? इंकी पिंकी में से भी राइट हो सकता है, चांस है, लेकिन अगर तूने छोड़ दिया तो की जीरो आने वाला है तेरे को। सो व्हाट यू डू इज दैट एमसीक्यू आता है तो वेरी गुड, लिख के आने का, नहीं आता है तो धाक मार के आने का, लेकिन एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आना ही आना है, ऑप्शन नहीं छोड़ना उसमें। सेकेंड, you have 3 hours of your time. So when you are writing your paper, ideally तुम्हारा हर एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स का टाइम होना चाहिए। इन दिस 30 मिनट्स you have to finish your that particular question. So if I'm starting with question number 2, in 30 minutes मेरा ABC हो जाना चाहिए। फिर जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिलेगा, 5 क्वेश्चन है तो that 30 minutes is for your MCQ. तो एमसीक्यू के लिए मैं 30 मिनट्स डालूंगी, 15 क्वेश्चन आएंगे 2 2 मार्क्स वाले, तो उसमें मैं 30 मिनट्स डालूंगी, एंड प्लस अदर क्वेश्चन का 30 मिनट्स। अगर एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लग गया, then in that case please ensure this timer is very very important, okay? Because अगर टाइमर छूट गया तो पेपर छूटने का चांसेस ज्यादा है, especially if you are a slow writer. So when I am dictating in class and you are the person who could not write with my speed, then you have to listen to this carefully that अगर 30 मिनट्स में नहीं होता एमसीक्यू तो तुम्हारे पास और 10 मिनट, do it in 40 minutes. But after 40 minutes, you can't go ahead with the MCQs. Because that reading of question, understanding, answering will take time. So please ensure कि 40 मिनट्स का मार्क के बाद तुम एमसीक्यू नहीं लिख रहे, एमसीक्यू छोड़ देना है, फिर जो भी है यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। सो छोड़ नहीं देना है, बेसिकली यू टू फिनिश इट इन 40 मिनट्स नो मैटर what. So you have to finish that in 40 minutes, and then you will have your time. So basically 2 minutes पर मार्क ऐसे करके करना है, तो तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर है, 140 मिनट्स तुम्हारे पास बचेगा। आइडियली एमसीक्यू शुड बी फिनिश्ड इन 30 मिनट्स, एंड ईच क्वेश्चन यू हैव टू गिव 30 30 मिनट्स, तो तुम्हारा प्रॉपर टाइमिंग होगा एंड तुम्हारा पेपर बराबर से खत्म होगा। अदरवाइज पेपर छूट जाएगा, अगेन दैट इज अ ब्लंडर, पेपर छूट जाता है और पेपर नहीं लिख पाए, blunder, correct? So we don't want that situation. So please ensure that you uh, टाइम इट प्रॉपरली, घड़ी लेके जाने का, वो सब चेक करने का, बैटरी है तो बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए, ऐसा नहीं घड़ी नहीं चल रहा है एग्जाम के टाइम पे। एंड दिस व्हेन यू विल प्रैक्टिस दिस, यू विल प्रैक्टिस दिस व्हेन यू गिव योर टेस्ट सीरीज, है। सो टेस्ट सीरीज जब देते हो तब ये 30 30 30 मिनट्स का इंश्योर कि तुम्हारा वो टाइम में खत्म हो रहा है,
लेट नहीं हो रहा है, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्यों टाइम लग रहा है, तो वो 30 मिनट्स का जो टाइमर है फॉर क्वेश्चन दैट यू हैव टू अडियर टू। तो अगर मैंने 2 बजे चालू किया ये क्वेश्चन तो 2:30 तक वो खत्म होना ही चाहिए, वैसा। तो दैट घड़ी के हिसाब से चलना है वरना पेपर छूट जाएगा। ओके। Yeah, question you are most comfortable with has to be attended first, that we already discussed. If you can't remember the answer and the time is not there, then you move on to the next question. So, say for example, मैंने थोड़ा लिखा सेल्फ पर्सपेक्टिव के बारे में, मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा, लेकिन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जैसा कुछ डॉक्यूमेंट है, बट आई एम अनेबल टू रिमेम्बर। नो प्रॉब्लम, छोड़ देने का, आगे जाने का और लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो 2A इधर लिखा है, तो यहाँ पे 2B नहीं लिख के नेक्स्ट पेज पे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। वेन यू आर राइटिंग, अगर तुमने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया है, A B C D जो भी क्वेश्चन पूछा है, प्लीज इंश्योर कि वो लाइन में लिखा जाए। देन यू गो टू क्वेश्चन 3 ABCD। कुछ लोग होते हैं जो लोग ऐसा लिखते हैं, क्वेश्चन 2 A, क्वेश्चन 3 लिखेंगे, फिर B, क्वेश्चन 5 C। It is, as an examiner, you have to think from my perspective. I am checking your paper. It is very annoying because marks जो है अलग अलग है हर एक के लिए. So I always have to refer. It is wasting my time, correct? So I will not appreciate. Marks तो मुझे देना है तो मैं दूंगी तुमको, लेकिन I will not appreciate this. So don't do this. तू चालू किया है, ABCD जो भी है लिखो, अगर सबको C नहीं आता जगह छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। फिर 3 चालू किया तो 3 का पूरा लिख। इसमें 2 3 4 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते। क्वेश्चन 6 पहले लिखा, ABCD, फिर क्वेश्चन 1 लिखा, मेरे को बहुत डिफिकल्टी आता है सब, तो मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया, फिर मैंने क्वेश्चन 3 लिखा। दिस इज ओके, बट जो क्वेश्चन लेते हो उसके जो इनर क्वेश्चन है वो सारे साथ में लिखो। ओके, टू द एक्सटेंट पॉसिबल आई वुड एडवाइज यू टू डू दैट। इट्स ऑलवेज helpful if you help the person who is checking your paper. Now, post exams. Okay, before I go to post exams, for your 15 minute study time, do we have any questions? कुछ भी पूछना है, ऐसा मत सोचो ऐसा मैं कैसा पूछूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो, मन में मत रखो। नो, ओके, परफेक्ट। सो नाउ वी गो टू योर पोस्ट एग्जाम थिंग। पोस्ट एग्जाम आई ऑलरेडी डिस्कस दिस विद यू कि जो है आके पेपर चेक नहीं करना है, टेक्स्ट बुक निकाल के नहीं देखना है कि क्या है, 30 मिनट्स का नैप लेना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करना है। जब तुम पढ़ाई करते हो, डोंट आस्क योर फ्रेंड्स। दिस इज नॉट अबाउट योर पोस्ट एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे ऑल्सो। टुडे व्हेन यू आर स्टडिंग, इट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर यू गाइस। सो don't compare yourself with friends, because friends have a different way of studying. Each and every individual has a different way of studying. They study differently, they finish at a different time. When you keep discussing constantly and comparing yourself, और उसका इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, या अगर तुम्हारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो लोग पढ़ते नहीं है तो लगेगा हाँ वो तो अभी तक यही कर रहा है, तो तुमको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं मस्त पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो है अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट उनको जो है ये सब चीज में डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर स्टडीज। एंड लाइक आई माय हस्बैंड ही वाज रैंक होल्डर, तो उसके साथ बात करेगा ना तो मेरा बीपी विल बी लाइक इतना हाई, क्योंकि उसका अलग लेवल की प्रेपरेशन होगा। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं, बट मेरा प्रेपरेशन भी अच्छा है, बट ही हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडिंग। सो जब भी एग्जाम है तब तू तेरा मैं मेरा, अपन बात नहीं करने का, हेलो हेलो बात करने का, अच्छे से बात करने का, बट पढ़ाई के बारे में अनलेस यू हैव डाउट्स एंड ऑल ऑफ दैट यू डिस्कस। अकाउंट्स पेपर स्पेशली, बैलेंस शीट टैली हुआ, ये इसका कितना आंसर है, ये सब नई बात करने का। उसका आंसर 100% राइट है पता है, नहीं पता, कितना भी होशियार है, डजेंट मैटर। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो द आंसर, डोंट डिस्कस। इट इज ओनली अफेक्टिंग यू, एंड प्रोबेबली उनको भी अफेक्ट हो सकता है अगर तुम्हारा कुछ अलग निकला तो। बट आई एम बेसिकली सेइंग दैट डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है। सो डोंट कंपेयर, इवन टुडे व्हेन यू आर स्टडिंग,
किसी का हो गया है, 3 सब्जेक्ट हो गया है, चौथा रिवीजन चल रहा है, वेरी गुड। अपने को ज्यादा डिस्कस नहीं करने का, अपने को उससे इम्पैक्ट नहीं होने का। अपने को पता है अपन जो कर रहे हैं अपने लिए अच्छा है। You do it accordingly. There are people who do 2 revisions and get a rank, people who do 6 revisions and get a rank, people who do 5 revisions don't clear. तो वो सब होता रहता है। The friend who had 60 plus in all papers, 39 in one paper, नहीं क्लियर हो गया। रैंक होल्डर था एक्चुअली, अगर 40 भी आता तो उसकी रैंक आ जाती थी। तो वो नसीब पे भी होता है। तो अपने को डिस्कस करके वो सब टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, डोंट डिस्कस। Yes, phones and your Instagram, YouTube, WhatsApp, all of that, Netflix, I'm sure and I'm hoping कि अभी Netflix और ये सब बंद है एंड Instagram भी तुम लोग कम देख रहे हो। दिस इज द टाइम, सी एग्जाम टाइम पे तो आई विल से नॉट मोर देन 15 minutes फॉर चेकिंग योर व्हाट्सएप टेलीग्राम। अगर कुछ अपडेट या कुछ ऐसा आया है तो उसके लिए वो 15 मिनट लगता है थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। बट अदरवाइज अभी भी जब तुम पढ़ रहे हो, अभी ज्यादा क्रूशियल है। एग्जाम डेज पे तो क्या, टाइम नहीं है, ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो यू आर नॉट गोइंग टू सी इंस्टाग्राम टेलीग्राम ऑल ऑफ दैट। बट अभी when you are studying, you don't realize how much time you waste using all these apps, and they are made to, addictive types होते हैं। मैं भी बैठूंगी तो I will just spend my time there and waste my time. So it is very very normal, they have designed it in such a way। तो अपने को जो है फोन लॉक करके रखने का, रात को देखने का, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है नहीं आया है, एंड दैट इज इट। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। ऑन द एग्जाम डे तो मैं नहीं भी बोलूंगी तो तुम वो करने वाले हो क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी स्ट्रेस है। I'm talking about today. Today also, get off all your social media, जो भी apps तुम लोग देख रहे हो वो सब बंद करने का। एंड इफ यू आर अ पर्सन हु कैन कंट्रोल कि मैं रोज का 10 मिनट देख के आई कैन जस्ट बी एंड आई बी ओके, वेरी गुड। तो नो प्रॉब्लम, तुम देख सकते हो, मेरे को इशू नहीं है। बट इंश्योर दैट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स मैक्स यू स्पेंड ऑन योर फोन, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाय फोन एंड ऑल्सो मीन टीवी, तो अगर टीवी पे नेटफ्लिक्स देख के फोन बंद रख रहे हो तो इट इज द सेम थिंग। सो ये सब के लिए अपने पास बहुत टाइम है। अभी ये एक बार इंटर हो गया, 2 साल के बाद आएगा, अपने पास टाइम ही टाइम है। जितना नेटफ्लिक्स तुम्हारा मिस हो गया ना, सीरीज डॉक्यूमेंट्री जो भी देखना है सब देखेंगे, बट अभी के लिए नहीं। दिस 1 मंथ विच इज देयर, ऑलमोस्ट 1 मंथ, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम है, प्लीज ensure that you're giving your 110%. Like I said in the past, if there is a library near your house, please ensure you join the library, because when you go to the library, it is much more convenient and it is much more effective. You are with a group of people who are all studying. घर पे क्या है, मम्मी नाश्ता देगी, चाय देगी, कुछ ज्यादा खा लिया, नींद आ गई, बेड पे ऐसा बैठे हैं, धीरे 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 सो जाते हैं, ये सब मैंने भी किया है। तो आई नो ऑल दैट। सो गो टू अ लाइब्रेरी, वहां पे डिसिप्लिन रहेगा तुम्हारा। You will study properly, you will study effectively, you will be with a group of people who are studying, so that environment is also created, and it will really, really help you to be sincere and finish your work. When you start your day, which I generally say that you should start your day early in the morning, as early as possible, unless you are a person who likes to study late, then that's okay. But start your day early, plan your day कि आज ये 2 सब्जेक्ट्स मैं करने वाली हूँ या ये 3 सब्जेक्ट मैं करने वाला हूँ। सो डू दैट। Normally 2 is a good, like till afternoon you would do something and then evening you do something else. ऐसा is a good breakup, like a 2 subject thing. But if you think 3 करना है, that is also good. That is upon you how you are comfortable studying, so that you can do accordingly. But what I used to do is I used to go to the library at 7. From 7 till around 4, I used to study one subject. And so if I'm doing like a theory, तो शाम को practical, या सुबह practical तो शाम को theory. So basically you get a mix of both. Only theory नहीं हो जाए ज़्यादा इसके लिए. And then 4 I used to take a break. 4:30 again start, and till 9 I used to do something. Then 9 o'clock लाइब्रेरी बंद होता था, घर पे आने का, खाना खाने का, टीवी देखती थी मैं आके। 9:45 तक मेरा सब खत्म हो जाता था। Then 9:45 to around 10:15, 10:30, I would just go through any revision notes. You can go through revision YouTube videos, audio notes, anything.
anything, probably something related to what you have studied in the day, or something which is totally different. And in that half an hour, just revise something and then go to sleep. The number of hours you are studying is important, but so equally important is the number of hours you are sleeping. If you're not sleeping well today when you're preparing, and if you're not sleeping well when you are studying for the examination, then it is not helping you. I have seen people who have slept during the examination because they have not slept well previously, previous night पे बराबर से नहीं सोए इसके लिए. So please ensure that during the exam days also you get sufficient sleep. At least 6 to 7 hours तो सोना ही सोना चाहिए तुमको. 6 hours तो सोना ही है, उससे कम मत सोना, क्योंकि अदरवाइज तुम भी फ्रेश नहीं रहोगे. Then it is not going to help you. Correct? So ensure that sleep जो है वो अभी भी तुम जब भी पढ़ाई कर रहे हो तभी प्रॉपरली सोते हो. एंड एग्जाम डेज पे भी 6 hours तो सोना ही सोना है. नो मैटर कितना पेंडिंग है, स्लीप शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. Okay, especially if you're a person who likes to study at night, please ensure you manage your timings, and that test series that you give helps you in that way, because it helps you plan कि okay एग्जाम डे पे मैं कैसे करूंगी. बिकॉज अगर तुम सुबह 5 बजे तक पढ़ रहे हो और फिर तुमको पेपर भी लिखना है, नींद नहीं हो रहा है, पूरा रिविजन भी करना है, इट विल अफेक्ट यू. सो प्लीज एंश्योर स्लीप जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. एंड नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे. क्वेश्चन आंसर ऑर्डर में जहां तक पॉसिबल है करना है, ये अपन ने डिस्कस किया. जब क्वेश्चन के लिए यू डोंट हैव द टाइम, सो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन 5 बचा है. एंड सॉरी, मुझे पता होता है कि तुम लोग ऑनलाइन में इतना शांत रहते हो, तो आई वुड हैव टोल्ड सर ऑनलाइन ही लेती मैं इन लोग का. फेस टू फेस में मेरा इतना तुम लोग ने दिमाग खाया, अभी क्या ऑनलाइन में ऐसा चुप बैठने का. इसको भी जवाब नहीं दूंगी. वेरी स्मार्ट. Recording in progress. Just share the screen with me. और what was I saying? कि अगर हमारे पास सपोज टाइम नहीं बचता है इनमें, and say for example your question number 5 is pending and you don't have the time to write all ABCD. So what to do is question 5 लिखने का, ए के जो भी पॉइंटर्स तुमको याद आते हैं लिख के रखने का, बीच में थोड़ा जगह छोड़ने का, इनकेस टाइम बचा तो सेंटेंस बना के उसको कंप्लीट कर सकते हैं. देन डी लिखने का, पॉइंटर्स लिखने का, सी लिखने का, पॉइंटर्स, डी लिखने का, पॉइंटर्स. देन यू विल ऑफ कोर्स हैव टाइम थोड़ा बहुत. तो यहाँ पे आके तुम्हारा जो भी तुमको आगे लिखना है वो खत्म तुम यहाँ पे कर सकते हो. एग्जाम्पल ऐड करना है तो एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, वैसा करते. समझ में? सो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन फुल क्वेश्चन, ये 5 मार्क का क्वेश्चन, आई एम राइटिंग ऑल 4 क्वेश्चन एंड राइटिंग द पॉइंट्स. एंड फॉर एवरीथिंग दैट यू राइट देर आर मार्क्स. तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत लिखा है तो पूरा ही जीरो हो जाता है. फॉर वट एवर, इवन इन योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एवरी स्टेप यू डू there is marks for that. यहाँ पे भी everything that you write उसके लिए mark है, and every mark that is there is important. People fail for 1 mark. Okay, so every single mark that is there is very very important. So ये ऐसा करके तुम लिख के आओगे तो तुम्हारा ABCD चारों अटेम्प्ट भी हो गया. कल उठ के ऐसा भी होता है कि अगर बी का जो तुम्हारा आंसर तुमने यहाँ पे खाली 2 पॉइंट लिखे हैं, अटेम्प्ट किया है, राइट, बट यहाँ का जो बी का क्वेश्चन है वो इंस्टीट्यूट ने बोला ये गलत था क्वेश्चन, तो सबको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ पे तुमने अगर बी लिखा है तो तेरे को तेरा मार्क्स मिलेगा, बट तुमने अगर खाली क्वेश्चन 5 लिखा है और बी नहीं लिखा है तो तेरे को तेरा मार्क्स नहीं मिलेगा. So these are small things
which will help you on the last day. अगर ये सोच के रखा है, पता है, तो तुम ऐसा कर पाओगे, otherwise नहीं कर पाओगे. Especially if you are a slow writer, please keep this in mind. Okay. Now, अगर हमेशा ही पेपर छूटता है, normally law नहीं छूटता है, but sometimes it is lengthy. There's a possibility that you may not be able to finish it. Okay. Now, अकाउंट्स, हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस शीट तुम्हारा नहीं टैली होता है. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम उसको टैली करने में. जो आता है लिख के आगे बढ़ने का. टैली नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसके थोड़े मार्क्स होते हैं, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है मार्क्स में, बट वो बैलेंस शीट टैली करने में अगर तुम तुम्हारा पेपर आगे का छोड़ दोगे तो दैट विल बी अ बिगर लॉस. आई विल टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. सीए फाइनल का जो अकाउंट्स का पेपर मैंने लिखा था उसमें मेरा एक भी सम में बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ था. दैट इज आई वाज अंडर इमेंस स्ट्रेस. 66 आया था मेरे को. तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऊपर का पॉइंट है, अगर एक जगह कुछ गलती छोटा कर दिया है तो वो नहीं टैली होता है. अगर नहीं टैली होता है, छोड़ देने का. वो एक गलती तेरा रॉन्ग गया, ठीक है, बैलेंस शीट नहीं टैली हुआ, उसका थोड़ा गया, ठीक है, बट वो गलती ढूंढने के चक्कर में आगे का पेपर छूटेगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा. दैट विल बी अ बिगर लॉस दैट यू विल फेस. सो प्रैक्टिकल में प्लीज इंश्योर कि ऐसा अपना ऑडिट करने को नहीं बैठने का. आपको कोई इनफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑडिट करने के लिए. हाँ. Avoid leaving things in option. This is the right time to tell you because you all are studying right now. Don't leave stuff for option. It doesn't help you, doesn't help anyone. अपने पास अभी भी टाइम है तो अपन पढ़ सकते हैं. ऑप्शन में छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. थोड़ा थोड़ा भी अगर आता है तो तुम आंसर लिख पाओगे, एंड थोड़ा भी आंसर लिख के आ गए तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो ये क्वेश्चन कंपलसरी में आता है, ये नहीं आता है. देयर आर किड्स हु डू एनालिसिस ऑफ पेपर. ये क्वेश्चन कंपलसरी में आएगा, ऐसा नहीं आता है, पहली बार ऐसा पूछा है तो अभी ऐसा. ये सब अपने को एनालिसिस इंस्टीट्यूट करेगा जिसको क्वेश्चन पेपर बनाने का. अपने को बैठ के वो सब टाइम वेस्ट नहीं करना. अपना काम है पढ़ाई करने का, एंड वी हैव टू स्टडी. ओके, सो डोंट डू दैट. Please well strict routine. Test series is very, very crucial. Please ensure you give at least one test series so that you know what to expect, how to prepare for all your papers. 1.5 day में कैसे prepare करना है. Okay? When you go for the examination and when you write the paper, you realize भले preparation अच्छा नहीं हुआ है तुम्हारा, but when you write the paper, you realize कि कहाँ पे you are standing. Which questions you are facing issue? Is it case study questions? Is it descriptive questions? क्या लिखने को नहीं आ रहा है, या टाइमिंग का इशू हो रहा है. सब कुछ आ रहा है लेकिन टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि स्लो लिखता हूँ. तो ये सब जो चीजें है, इट विल हेल्प यू इन एडवांस, एंड द मेन एग्जाम विल नॉट कम एज अ शॉक बिकॉज यू मेंटली नो कि अच्छा ऐसा ऐसा मुझे करना है. So once you give the test series, it really, really helps you in understanding how to attempt, how to write the paper, how to prepare for the paper. If मैंने जो तुमको स्ट्रैटेजी दी है कि फर्स्ट डे पे ये पढ़ना है, लास्ट डे पे ये पढ़ना है, तुमको लगा कि नहीं मेरा खत्म ही नहीं हुआ, then you can tweak your study strategy accordingly for your main final exams. Okay, so very, very important that you write टेस्ट सीरीज, एनी टेस्ट सीरीज, बट इंश्योर यू राइट द टेस्ट सीरीज जैसा लाइन में होता है, जैसा पेपर होता है 1.5 डे के ब्रेक के बाद. एग्जैक्टली वो तरीके से सारे पेपर्स तुम लिखो टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू राइट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. ओके, सो या दिस इज ऑल from my side. Anything that you want from my end which you feel ki this will help me, then I will. Top 50. Okay, so what are the things that I'll give you is audio notes. I've uploaded most of them. You are left. Top 50, top 100 questions, I will send it out to you. But please ensure you don't just read those questions and go for the examination. Do not ask me such questions before your exam saying मैं खाली टॉप 100 पढ़ के जाऊंगा तो पास होऊंगा. आई डोंट नो, मैं पेपर सेट नहीं करती हूँ. तो मेरे हिसाब से ये टॉप 50 टॉप 100 है. किसी के भी कोई भी फैकल्टी तुम ले रहे हो, अगर टॉप 50 टॉप 100 खाली देख के गए तो तुम पक्का फेल हो सकते हो ना, अनलेस यू आर वेरी वेरी लकी. That I have to give you. Revision videos for each I will give you. Most of them are there on the YouTube channel, so you can see there. There are two types of revision videos. One is a longish revision video of around 1.5 hours or something, and the others are 20 minutes revision videos. Those 20 minutes revision videos
you have to see on the last day, and तुमको क्विकली खाली कॉन्सेप्ट मतलब रिवाइज करना है, बाकी लंबे वाले तुम अभी के लिए तुम पढ़ सकते हो उससे. एंड एनीथिंग एल्स which you want? MCQs are you all attempting properly? So फिर accordingly I will send it on the group. Anything else that you want to ask, you want to know, या कुछ कंफ्यूजन है? बेसिकली जस्ट क्वेश्चन आंसर, तुमको जो भी जहाँ पे भी डाउट है पूछ सकते हैं. व्हेन यू आर स्टडिंग राइट नाउ, प्लीज एंश्योर फर्स्ट यू स्टडी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. जो अपना टेक्स्ट बुक दिया है, टेक्स्ट बुक थॉरली पढ़ने के बाद तुम क्वेश्चन आंसर्स पे शिफ्ट हो सकते हो. क्वेश्चन आंसर्स जो है, ट्राई रीड द क्वेश्चन, राइट द इम्पोर्टेंट बुलेट्स, check whether you are writing all the important points that are needed to be covered for that particular answer, and then move ahead. जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तुमको लिखने में इशू हो रहा है, या केस स्टडी क्वेश्चन है, कुछ पूछा है बट तुम्हारा आंसर तुमने कुछ और ही सोचा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है. Mark those questions for yourself as last day revision questions. So on last day, you have to revisit those questions. To revisit those questions that are there. The notes and the chart book that we have written in the class, that you should keep revising. If you have completed your book, just to revise from there on days when you are not, what do you say, not studying them. Correct? So if I'm doing two other subjects, that जो मैंने बोला 9:45 to 10:15 I have to revise something, I just go through management administration या audit का chapter लिया और देख लिया क्या क्या है, and that is okay. About penalty, कंपल्सरी है कि नहीं. सो फॉर सम क्वेश्चन जहाँ पे मैंने देखो आपको दिखाया है चार्ट बुक में कि पेनल्टी ये है, बिकॉज वो पेनल्टी पूछा गया है. मैंने हर जगह तुमको बुक में जब भी दिखाते हैं तब मैं पेनल्टी नहीं लिखवाती हूँ. ओनली एट सम प्लेसेस वी हैव रिटन. तो जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द पास्ट अबाउट व्हाट डू यू कॉल योर पेनल्टी, वहां पे मैंने तुमको स्पेसिफिकली लिखवाया है. अगर नहीं लिखवाया है तो इट इज समथिंग विच इज नॉट जनरली कंसिडर्ड, नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो ट्राई एंड रिमेम्बर. वर्स्ट केस अगर नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट उतना याद रखो कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, या बोथ है. वैसा 447 का पेनल्टी है, वो हमको याद रख के ही जाना है. That is very important because 447 you will use it at many places also, and it is important overall. So 447 is something that you will have to remember. MCQ I will send on the group. Okay. So that is there. The theory question जहाँ पे question do और तुमको answer लिखना है, and then I send a voice note of what are the important points that should be there in your answer. Are you all doing that? Then we can continue doing that. I'm okay. But अगर तुम्हारे पास time है तो okay. So we will send a few, and let's try writing. Whoever has the time, even if you don't have the time, I will send one question पर डे. मतलब whenever I'm sending, one day का one question ही होता है. तो अगर तुम रात को जब एंड हो जाता है, तुम्हारा सब पढ़ाई हो जाता है, 5 मिनट निकाल के तुम तुम्हारे हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, ऑडियो नोट सुनो, एंड डन. तो तुम्हारा रिवाइज भी एक हो जाएगा, एंड दैट वे यू विल नो कि दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So that will be sorted. Yes. Anything else that you need from my end that we should discuss in the class? Anything else? नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत अच्छे से पढ़ाई करना. इसके बाद अपने को बहुत लंबा ब्रेक मिलेगा, बहुत कुछ करने को, टाइम पास करने को मिलेगा. तो प्लीज इंश्योर दैट वट एवर टाइम यू हैव राइट नाउ is the most crucial time. So please ensure that you study very, very properly. Give your 200%. But एक बार में हो जाएगा क्लियर तो शांति लगेगा अपने को भी. घड़ी घड़ी सेम चीज पढ़ने का एक वेरी पकाओ. तो अपने को एक ही बार में क्लियर करके खत्म करने का है. ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, दोनों ग्रुप देना है. जो तुमने सोचा है तुम्हारे अकॉर्डिंग उसके हिसाब से करो and give that paper. But whatever you have decided I want to give both groups.
Please ensure you are putting that effort in that direction. बाकी लोग एक दे रहे नहीं दे रहे एग्जाम जो भी कर रहे हैं is irrelevant. At no point in your preparation should you think that now मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं ये एग्जाम नहीं देके नेक्स्ट एग्जाम दूंगी या दूंगा. दैट इज नॉट एन ऑप्शन. यू हैव डिसाइडेड दोनों देना है, कुछ भी हो जाए देना है. वो फ्रेंड whose father passed away during the examination but she gave her papers. No matter what happens, you have decided you want to give the paper. You will give the paper. पेपर कितना भी खराब जाए, you have to give the next paper. Don't think you will fail because there's a very high probability that you will clear. ओके, तो पेपर खराब जाता है तो सबका ही खराब जाता है, तो मार्क्स भी अकॉर्डिंगली वो लोग को देते हैं. तो अच्छा मार्क्स मिलेगा. कॉन्फिडेंट रहो. जो भी पढ़ाई किया उसके हिसाब से करके जाओ. लास्ट डे पे नया नया चीज मत देखो कि अच्छा इसने ये भेजा है तो देख लेता हूँ. नो. if you have your set of material that this is what I'm going to study and this is what I'm going to refer to, then you don't see anything new on the last day. Even if I send it to you ना कि ये देखो मत देखना, new things never to be referred to on the last day. Whatever you studied उसी को पढ़ के जाना है. Because new material भी आएगा तो वो same text in some different form it is there. But it is the same thing. New things are not going to be added there. So don't see anything new on the last day. Whatever you want to see अभी से decide करके रखो, print करके रखो, तुम्हारे साथ रखो. New कुछ मत देखना. Okay. All the very very best. Please study very nicely and once you share your marks, I will be very very happy to congratulate you. So put in your best and एकदम अच्छे से पढ़ाई करना. ठीक है? And any doubts you have my number. You can always message me your doubts. I will get back to you. So that is a given thing. But anything else also, sometimes if you're just feeling low, if you don't feel like studying, you're stressed, please feel free to call me and I'll be happy to help you. Yes. Okay. So I'll just end the meeting. All the very, very best. Study well. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.